and welcome back. So today again we are going to start with the topic algebraic expression and operations on them. Student, in this module we are going to continue with the practice set 36. So let's begin. Student, let us start with practice set 36. As you all know, we had completed with first, second and third sum. So today we will do sum number 4. Okay, same question I had written here, student. As you can see, Rakesh age is less than Sania's age by 5 years. Okay, the sum of their ages is 27 years. How old are they? Student, first let us try to understand this question. Okay, what is given in question and what has been asked in question. So first you can see Rakesh's age is less than Sania's age by 5 years. So whose age is given? Rakesh's age is given, but not exactly. Okay, exactly age is not given. It is just given that by Sania's age he is less than 5 years. Okay, तो first we are going to find out Sania's age, है ना. फिर जाके राकेश का एज पता चलेगा. उनका टोटल दिया हुआ है. द सम ऑफ देयर एजेस इज 27 years. ओके, हाउ ओल्ड आर दे. तो सबसे फर्स्ट राकेश का एज दिया है बट बाय सानियाज एज. ओके, and their total is given. Okay, so first we are going to find out Sania's age. So student, in this kind of a question you are going to first do assumption. Okay, assumption means let Sania's age be X year. Okay, why? Because we don't know. Okay, so X year, what we assumed X. Okay, be X years. Now then we will see Rakesh age. Okay, then Rakesh age is X minus 5 years. Student, from where I got this? Okay, x minus 5. See, 5 is given क्योंकि राकेश एज इज 5 year, बट वॉट लेस देन सानियाज एज. अब सानिया का एज हमने x एग्ज्यूम किया, इसके लिए यहाँ पे x आया. अब यहाँ माइनस क्यों है? वाई दिस इज माइनस? स्टूडेंट, बिकॉज लेस बोला है तो माइनस, मोर बोलते तो प्लस. अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू? सो x minus 5. Why x minus 5? Because Rakesh age is less than Sania's age by 5 years. ठीक है, 5 years से less है, इसके लिए यहाँ पे माइनस. I hope this statement is clear to you all. Now what we will see, the sum of their ages. Third thing what is given, the sum of their ages. What is their sum of their ages is 27 years. Okay, these three things we got. Now write this three things as a equation. कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? पहले x, okay, then प्लस, यूजुअली यहाँ पे प्लस होगा. देन सेकेंड हमारा क्या है? x माइनस 5. ओके, देन इक्वल्स टू 27. क्यों इक्वल्स टू? क्योंकि सम ऑफ टोटल आया ना, टोटल है ना, तो a प्लस बी है ना, इक्वल्स टू वाई. समझ रहे हो, ये टोटल है, इसके लिए इसको 27 को हमने इक्वल टू करके लिखा है. ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया. नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व. नाउ स्टूडेंट, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट. x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 27. ओके, आई हैड ओपन द ब्रैकेट. नाउ देयरफॉर x प्लस x इज 2x. ठीक है, सेम है ना ये दोनों वेरिएबल, तो इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं. 2x minus 5 equals to 27. Okay, till here you understood now. Now what you will do, student, you are going to just add. Okay, you can adding 5 to both the side, this adding 5 to both the side. Okay, see how, or else you can just
2x, ये सब्सटीट्यूट कर दो, ये 2x जो वेरिएबल के साथ में है ना, x वेरिएबल है ना और ये साथ में है, तो कैसे करोगे, ये वाले नंबर को जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये क्या है माइनस, तो व्हाट इट विल बिकम स्टूडेंट प्लस, ठीक है। सो 2x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 5 इज हाउ मच स्टूडेंट 32, ठीक है 32 आ गया। नाउ व्हाट यू विल डू, ये फिर से x यहाँ पे लो और ये 2 को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, राइट हैंड साइड पे कैसे होगा 32/2, 1 ज़ा 6 ज़ा एंड 1 ज़ा, ओके। सो 2 1 ज़ा एंड 2 16 ज़ा इज 32, एक ही टेबल में रहेगा, देन ओनली यू कैन कट। सो वी गॉट x इज इक्वल्स टू 16, यू कैन डिवाइड दिस, ठीक है, बट आई हैड कटेड बिकॉज ये दोनों इवन है और एक ही टेबल में है, तो एक ही टेबल में रहेगा तो आई कैन कट इट, ठीक है। तो हमें सानिया का एज मिल गया x इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब हम किसका एज फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर राकेश एज क्या था x माइनस 5 है ना, ये राकेश का एज था, तो हम इसमें ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिला है हमें 16 मिला है, तो 16 माइनस 5 इज हाउ मच स्टूडेंट, सो 16 माइनस 5 इज 11, ओके। सो वी गॉट बोथ देयर एजेस, ठीक है। देखो सानियास, so student as I told you Sania's age is 5 years, okay, not 5 years, how much we got 16, okay, so 16 years, okay, and Rakesh age is 11 years, ठीक है। see if you will do total ना 16 plus 11 you will get 27 है ना, ये दोनों का प्लस करने के बाद में 27 हो रहा है, तो देखो द सम ऑफ देयर एजेस इज 27 ईयर्स, तो दोनों के प्लस हुए एज तो 27, दैट मीन्स आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ फिफ्थ सम, ओके, सो लेट अस रीड क्वेश्चन फर्स्ट। व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट the number of jambul trees planted was greater than the number of ashoka trees by 60, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, जाम्बुल ट्रीज प्लांटेड वॉज ग्रेटर, सबसे पहले चीज पता चल रहा है ग्रेटर, ग्रेटर मतलब यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, ओके। तो जाम्बुल ट्री वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बाय 60, मतलब जाम्बुल ट्री ग्रेटर था, तो मतलब जाम्बुल क्या होगा x, ओके 60, ओके। सो इफ देर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज ऑफ दीज टू टाइप्स, हाउ मेनी जाम्बुल ट्रीज वर प्लांटेड, ठीक है, जाम्बुल ट्री। सो लेट व्हाट वी विल एज्यूम स्टूडेंट, लेट x sapling of Ashoka trees were planted, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर क्वेश्चन क्या आता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि हम अज्यूम किसको करें, ये x है ना, ये अशोका ट्री को मैंने अज्यूम किया, बट ये पता नहीं चलता है सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट उसके लिए देखो क्या करना है, पता है तुम्हें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज प्लांटेड वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्री बाय 60, अशोका ट्री को 60 नहीं किया है ना, किसको किया है, जाम्बुल ट्री को 60 किया है प्लांट, है ना। देखो देन द, जहां देन द आया ना, देन द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बाय, बाय मतलब इसका जाम्बुल ट्री का, ठीक है, बाय 60, बाय 60 मतलब जाम्बुल ट्री का। अभी देखो यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन, कैन यू सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, ये राकेश एज इज लेस देन सानियास एज बाय, बाय किसको बोला है, सानिया का, है ना, सानिया के बाय बोला है ना सानिया के बाद में, तो मतलब ये एक्स हमने किसको एज्यूम किया स्टूडेंट, सानिया का, है ना, क्योंकि राकेश का एज बताया था। तो वैसे ही जब बाय 60 किसके पहले, अशोका, मतलब अशोका को अज्यूम करना है, किसका, किसको अज्यूम करना है, अशोका को। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को।
कि लेट एक्स सैपलिंग ऑफ अशोका व प्लांटेड, ठीक है, ये आ गया तो तुम सेकेंड अपने आप लिख लोगे। देन एक्स प्लस 60 प्लस क्यों आया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रेटर, अगर लेस होता तो माइनस होता, प्लस है मतलब ग्रेटर है मतलब प्लस, अगर प्रोडक्ट होता तो इनटू होता स्टूडेंट, ओके, बट यहाँ पे ग्रेटर है मतलब प्लस। सो जामुल ट्री कितना है यहाँ पे 60, तो x प्लस 60, ठीक है, सैपलिंग ऑफ जामुल। स्टूडेंट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू कैन नॉट स्किप दिस स्टेटमेंट्स, ये लिखना ही है, वो प्लांटिंग, ठीक है। नाउ थर्ड टुगेदर, टुगेदर कितने थे, टुगेदर देयर नंबर इज 200, है ना, 200 प्लांट किया ना, ओके। नाउ अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, x प्लस, यहाँ पे प्लस ही होगा, ये क्या है x प्लस 60, ओके, एंड इक्वल्स टू 200, ठीक है। देयरफॉर x प्लस सॉरी यहाँ पे 60 होगा, 60 इक्वल्स टू 200, सेम, ये दोनों सेम है तो 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 200, ठीक है, वेरी इजी, ये दोनों को साथ में ले लो 2x, अब यहाँ पे इक्वल टू डालो और ये 60 को ये साइड में लो, ठीक है, 200, यहाँ पे कौन सी साइन है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -60, ठीक है। अब 2x इज इक्वल्स टू 200 में से 60 माइनस किया स्टूडेंट, तो हाउ मच 140, ओके। अब देखो, अब ये x ले लो, ये इनटू है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा डिवीजन, ओके। अब ये 2 इवन है, ये भी इवन है 0, तो ये एक में जाएगा, तो 2 देखो कैसे मैं काटती हूँ, 2 0 ज़ा 0 और 2 7 ज़ा 14, तो 70, समझा। सो x इज इक्वल्स टू 70, एक की वैल्यू मिल गई। अब x किसको अज्यूम किए थे स्टूडेंट, हमने अशोका को, तो अशोका का कितना हो गया 70। अब हम क्या जामुल ट्री में x प्लस 60 इसमें पुटअप करेंगे, ठीक है, वैल्यू x की वैल्यू पुटअप करेंगे। देयरफॉर x कितना है स्टूडेंट, 70 प्लस 60 इज हाउ मच 130। अब देखो 130 और 70 कितना हो गया ना 200। सो आंसर क्या आया स्टूडेंट आप लोग का, 130 सैपलिंग्स, खाली जामुल का पूछा है, ठीक है, तो हम जामुल का ही लिखेंगे, सैपलिंग्स ऑफ जामुल वर प्लांटेड। आई होप ये तुम्हें समझा है। Okay student, now we will see sixth sum, okay. So Shubhangi has twice as many 20 rupee notes as she has 50 rupee notes. Altogether she has 2700 rupees. How many 50 rupee notes does she have? Okay, as twice as many 20 rupee note as she has 50 rupee note, ठीक है। हमें मालूम नहीं है 50 कितना है, लेकिन 20 कितना है, ट्वाइस किसके, 50 के। तो अब यहाँ पे क्या x एज्यूम करना है स्टूडेंट, 50 रुपी को x एज्यूम करना है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बाय दिया नहीं है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एज ट्वाइस एज मैनी 20 रुपी नोट एज शी हैज 50 रुपी नोट। सो लेट Shubhangi, student I told you statement are very important, have x, ठीक है, x notes of 50 रुपी, ठीक है, मैंने 50 रुपी को अज्यूम किया है, ओके। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, then she has क्या है 20 रुपी, शी हैज ट्वाइस, स्टूडेंट ये मत भूलो, देन शी हैज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2x, ट्वाइस मतलब 2 और x मतलब 50 रुपी का नोट है ना,
तो 2x नोट्स ऑफ 20 रुपी. Okay, now the total amount with her is ₹2700. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो x प्लस 50, x प्लस 50, अब ये ट्वाइस है ना, 20 रुपीज़ कितना है, ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x इंटू 20. Okay student, now we will see sixth sum. Okay, so Shubhangi has twice as many 20 rupee notes as she has 50 rupee notes. Altogether she has 2700 rupees. How many 50 rupee notes does she have? Okay, as twice as many 20 rupee note as she has 50 rupee note. ठीक है, हमें मालूम नहीं है 50 कितना है, लेकिन 20 कितना है, ट्वाइस किसके, 50 के. तो अब यहाँ पे क्या एक्स एज्यूम करना है स्टूडेंट, 50 रुपी को एक्स एज्यूम करना है. क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बाय दिया नहीं है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एज ट्वाइस एज मैनी 20 रुपी नोट एज शी हैज 50 रुपी नोट. सो लेट Shubhangi, student, I told you statement are very important, have x, ठीक है, x notes of 50 रुपी. ठीक है, मैंने 50 रुपी को अज्यूम किया है. ओके, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, then she has क्या है, 20 रुपी. शी हैज़ ट्वाइस, स्टूडेंट ये मत भूलो, देन शी हैज़ ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2x, ट्वाइस मतलब 2 और x मतलब 50 रुपी का नोट है ना. तो 2x नोट्स ऑफ 20 रुपी. ओके, नाउ द टोटल amount with her is ₹2700. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो x प्लस 50, x प्लस 50, अब ये ट्वाइस है ना, 20 रुपीज़ कितना है, ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x इंटू 20 है ना. इंटू क्यों स्टूडेंट, क्योंकि प्रोडक्ट है. 2x नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, लेस ग्रेटर नहीं है. ओके, 2700. नाउ नो वेरिएबल इज सेम. So this is 50x, x plus 50 is 50x plus 2x into 20 है ना, into 20 equals to 2700. अभी देखो 50x plus 2 20 is 40x. okay, 2700. Now 40 plus 50 is 90x. okay, is equals to 2700. अभी x को यहाँ पे लो और 90 को इधर शिफ्ट करना है. ओके, और 90 डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आएगा तो डिवीजन. 0 0 कैंसिल, 9 1 9
थ्री ज़ा दैट मीन्स 30, ठीक है, 0. सो x इज इक्वल्स टू 30. x की वैल्यू मिल गई. ओके, तो आंसर शुभांगी हैज़ 30 notes. शुभांगी has 30 notes of 50 rupees. Okay, so I hope this is clear now. Okay student, now question number 7 of practice set 36 only. Okay, now Virat made twice as many runs as Rohit. ठीक है, विराट का स्कोर दिया है ट्वाइस, देन मतलब ट्वाइस स्कोर करेगा कितने स्कोर, किसके स्कोर से, रोहित के. तो अब हम रोहित का स्कोर अज्यूम करेंगे x. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x. 2x क्यों, क्योंकि ये ट्वाइस रहेगा और इसके स्कोर से इसका ट्वाइस है ना. तो लेट रोहित स्कोर x रन्स, है ना. और विराट का कितना है, विराट स्कोर्ड 2x रन्स. क्यों 2x, ट्वाइस है इसके स्कोर से, है ना, तो 2x. दे टुगेदर कितना, द टोटल ऑफ देयर स्कोर इज 2 लेस, लेस मतलब माइनस, देन अ डबल सेंचुरी. आई विल टेल यू, मैं बताती हूँ कैसे लिखना है. दे टुगेदर scored, okay, 2 less than double century, है ना. अब इसको कैसे फॉर्म करना है, इट मीन्स दे स्कोर्ड, सेंचुरी कितना होता है स्टूडेंट, 100. आप लोग को तो मेरे से ज़्यादा पता है. सेंचुरी मीन्स 100, यहाँ पे डबल सेंचुरी क्या होगा 200, है ना. लेस देन, लेस मतलब माइनस, लेस देन 2, है ना. सो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 2 हो जाएगा 198 रन्स. तो वो दोनों साथ में कितना बनाए हैं, 198. आई होप दिस क्लियर. नाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशन. x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 198, है ना. पता चला ना ये x कहाँ से आया, रोहित का स्कोर 2x, विराट का स्कोर, देन साथ में कितना बना है 198. ओके, अब सेम प्रोसेस, x प्लस 2x इज 3x इज इक्वल्स टू 198. x इज इक्वल्स टू 198 अपॉन 3. हाँ, देयरफॉर लगाना है. ओके, देयरफॉर देन देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों, एक देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, तो हम डिवाइड करके देखेंगे. ओके, 198 बाई 3, 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 6 है ना. यहाँ पे 1 आ गया, 8 नीचे लिया, अगेन 3 6 ज़ा 18, तो 66, है ना. तो 3 1 ज़ा और यहाँ पे 66, तो x इज इक्वल्स टू 66, है ना. नाउ अभी ये वैल्यू पुट करना है ना 2x में, ये वाली वैल्यू x की इसमें पुटअप करना है. ठीक है, विराट के स्कोर में रोहित का मिल गया, ये हमने रोहित का फाइंड आउट किया है. ये किसका स्क्वायर है, स्कोर है रोहित का. ठीक है, अब हम विराट का फाइंड आउट करेंगे. तो विराट का क्या है 2x है ना. तो 2x मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटू 2 इंटू 66, ये x की वैल्यू है. तो 266 इज हाउ मच स्टूडेंट, 132. तो ये किसका स्क्वायर है, स्कोर है, सॉरी विराट का. ठीक है, अभी टुगेदर करोगे तो 198 आएगा. सो आंसर, विराट स्कोर्ड 132 रन्स एंड रोहित स्कोर 66 रन्स. ठीक है, ये हमारा हो गया. नाउ स्टूडेंट, आई वांट यू टू डू practice set 36, entire practice set. Okay, entire chapter
this chapter number 8, you are going to do entire chapter into your rough book. First of all, into your notebook do sum number 4, 5, 6, 7. Okay. After that, entire chapter once again you are going to practice into your rough book. So student, I want you all to do practice at 36 sum number 4, 5, 6 and 7 into your notebook, mathematic notebook, and entire chapter number 8 once again you are going to practice into your rough book. So student, we had completed with the chapter 8. If you like my video and you want me to do any such educational video, please do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then student, take care. Thank you.